اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہم کیا دہشت گردی کا جڑ سے خاتمہ وہ ممکن بنا سکیں گے؟ ناؤ دیٹ وی نو کہ جی کھلم کھلا دوسرے ممالک جو ہیں وہ ہمیں کارنر کر رہے ہیں، ہمیں ٹارگٹ کر رہے ہیں ہر سطح پہ۔ سب سے پہلے تو جو ایاز وزیر صاحب نے بات کی ہے، میں اس کے اوپر حیران نہیں ہوں، میں پریشان ضرور ہوں لیکن مجھے حیرانگی نہیں ہے۔ لاہور میں جو 14 آدمی مارے گئے تھے، نہ حق مارے گئے، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے، وہاں پر مارے۔ یہ بلوچستان میں جو ڈیڈ باڈیز اور ماس گریوز نکلتی ہیں اس کے اوپر تو کوئی آواز نہیں اٹھاتا ہے، کیوں وہ انسان نہیں ہے؟ ماس گریوز ہیو بین ان ارتھ ان بلوچستان، کیوں وہ پاکستانی نہیں ہے؟ صرف لاہور والے جو ہیں وہ پاکستانی ہیں۔ یہ پختونخوا میں، یہ تو آپ اس کی بات کر رہے ہیں کہ فاٹا میں ابھی جو یہ انسیڈنٹ ہوا تھا، آپ مردان میں دیکھ لیں، آج مردان کا انسیڈنٹ ہوتا ہے، کل شام کو وہی پارٹی جو رول کر رہی ہے وہ لاہور میں ناچ رہی تھی۔ مطلب کوئی وہ نہ چاہیے، وہ دوز ڈیڈ پیپل ور اسٹل مورننگ، اور آپ ان کے وہ ٹیلی ویژن پہ دکھا رہے ہیں کہ لوگ ناچ رہے ہیں اور گانے گا رہے ہیں، یہ وہ ہے، دس از آر ایٹیٹیوڈ ہے ہمارا۔ ابھی ضرب عرض جو ہے وہ کائنیٹک آپریشنز آپ کو ایک ماحول دے سکتے ہیں، وہ حل نہیں ہے مسئلے کا۔ دیر از نو ملٹری سولوشن ٹو دس پرابلم۔ آپ اس کو وہ اگر فاٹا میں اگر کوئی جگہ پہ قبضہ ہو گیا تھا، وہ ہماری کمزوریوں سے ان سے فائدہ اٹھا کے تو جگہوں پہ قبضہ کر لیا تھا، چلے فوج آپ نے استعمال کی، اس کو آپ نے اس کے انفراسٹرکچر کو ڈسمینٹل کر دیا۔ میرے تو ذہن سے بھی نکل گیا کہ آپ کلیمز جو ہیں اور 2016 کو دہشت گردی کے خاتمے کا میں بڑا بلنٹلی اس کا جواب دوں گا جی، 2.5 سال سے یہ ضرب عضب آپریشن ہو رہا ہے اور ہر دوسرے دن ایک سٹیٹمنٹ آتی ہے کہ جی اب ہم نے ٹیررزم کے اوپر مطلب اس کو ہم نے قابو پا لیا ہے۔ بھی ہر دن اس ملک میں ٹیررسٹ اٹیکس ہو رہے ہیں، چند رپورٹ ہو جاتے ہیں، چند رپورٹ نہیں ہوتے، جو رپورٹ ہوتے ہیں اس میں 60 70 80 بندے مرتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو میم ہوتے ہیں، جن کے ٹانگیں ٹوٹ جاتی ہیں، بازو ٹوٹ جاتے ہیں، جو ساری زندگی کے لیے مطلب فرینکلی وہ اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑے ہو سکتے، ان کا نام ہی کوئی نہیں لیتا۔ اور پھر اور اس میں جو چیز اس ملک میں جو اس وقت جو رولنگ طبقہ ہے، اس نے سوداگری اس ملک میں کی ہوئی ہے، اس نے سارا سسٹم جو ہے اس کو خریدا ہوا ہے، ٹوٹلی خریدا ہوا ہے، اور انہوں نے انسانی جانوں کی قیمت جو ہے وہ بھی لگانی شروع کی ہوئی ہے۔ ہر جان جو مرتی ہے اس کو 4 لاکھ 5 لاکھ اس کے اوپر تختی لگا دیتے ہیں اور کہتے ہیں جیسا کہ میرے بھائی نے کہا ہے کہ جی اور ضرورت پڑی تو اور بھی دے دیں گے۔ یہ کیا ہم نے اس مملکت کو کہاں پہنچا دیا ہے؟ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ نہ ہو، اور میں فیل کرتا ہوں آپ کے سوال کے جواب میں کہ ہم کمپلیٹلی نہیں تو بہت حد تک یہ سارا آپریشن بوتھ ان فاٹا اینڈ ان کراچی فیل ہو چکا ہوا ہے۔ مجھے اس میں کوئی امید نہیں نظر آتی کہ یہ کوئی اس کو فردر مطلب ہم سال 2 سال 4 سال اور اس کو آگے لے کے چلیں تو حالات کچھ بہتر ہوں گے، اکیلی فوج نے تو نہیں حالات بہتر بنانے یا دہشت گردی کا خاتمہ کرنے۔ جی میں بالکل اسی پر آ رہا تھا کہ اس کے لیے آپ کو وہ جو ایک آپ نے نیشنل ایکشن پلان بنایا ہوا تھا، کیا اس کے اوپر آپ نے عمل کیا ہے؟ کیا آپ نے یہ جو دہشت گردی کی آپ کی سیمینریز ہیں کیا ان کو بند کیے ہیں؟ کیا آپ نے، اور بہت کچھ ہے اس میں 20 پوائنٹس ہے، اور تقریباً پاکستان کا حلقہ ارباب اب ایکنالج کرتا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کے اوپر عمل نہیں ہوا۔ میرا بالکل دل بھر چکا ہے، حد ہے، ایک لیمٹ ہے۔ یا تو فاٹا کو حصہ سمجھی یا اس کو کاٹ کے پھینک لے کے بھاڑ میں جائے۔ یہ لوگ گنی پیگز ہیں، گنی پیگز آپ سمجھتے ہیں جس میں وہ تجربے لوگ کرتے ہیں، مر جائے تو مر گیا، بچ گیا تو بچ گیا۔ ہمیں گنی پیگز کی طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے کہ ڈرون حملے ہوں تو فاٹا کے اوپر ہو، بم ہو تو فاٹا کے اوپر ہو، اور اگر ہم نے آپریشن کرنا ہے تو فاٹا کے اندر ہو۔ یہ ملیٹنٹ صرف فاٹا کے اندر بیٹھے ہیں اور پاکستان میں نہیں ہے، سارے بڑے بڑے شہروں میں بڑے بڑے ملیٹنٹس آپ نے گرفتار کیے ہیں، لوگوں نے مارے ہیں۔ کوئی ایک آپ کا پنجاب میں جو کون سا تھا وہ جگو نہ، وہ چھوٹو گینگ کو آپ 1 مہینے شاید کنٹرول نہ کر سکے، اور اس کے اوپر نہ کوئی توپ چلائی، نہ کسی جہاز کو حکم دیا کہ جاؤ اس کو مار ڈالو۔ ہمارے ہاں تو بڑے آسانی سے آپ کرتے ہیں۔ اشرف غنی صاحب کی جو ملاقات ہوئی بھارتی وزیر اعظم کے ساتھ، اور بڑے $1 ارب بھارت نے دینے کا ان کو ارادہ کیا ہے، اس کا اعلان کیا ہے، بڑا جو اعلامیہ مشترکہ اعلامیہ جو جاری ہوا اس پہ بغیر پاکستان کا نام لیے پاکستان کو بڑا ٹارگٹ کیا گیا اور کہا گیا کہ جی، اور اس پہ الزام عائد کیا کہ خطے کے امن و استحکام کو سب سے بڑا خطرہ ان سے ہے جو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے دہشت گردی کی پشت پناہی کرتے ہیں۔ اسی قسم کی باتیں کچھ امریکہ بھی کرتا ہے۔ سر کس طرح سے دیکھ رہے ہیں پاکستان کو اس بار بھارت نے بلوچستان پر جو اسٹریٹجی بنائی ہے اور کارنر کرنے کا جو پورا ایک پلاننگ منصوبہ بندی پہ کام ہو چکا ہے،
पाकिस्तान का अब रिएक्शन का वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि किस तरह का रिएक्शन? देखिए, हमारी बदकिस्मत ये है कि हम अपने दुश्मन कुछ तो मालूम है, ओपन है, जैसे हिंदुस्तान के साथ हमारा सिरिस है, बाकी कुछ दोस्तों को भी हमने दुश्मनी की तरफ धकेल दिया, मुल्क के अंदर भी और बाहर दूसरे मुल्कों में भी, सिर्फ इस बात पे कि या मोदी काबुल चला गया या अशरफ गनी साहब दिल्ली चले गए, उन्होंने आपस में मदद। इंडिया, लेट्स नॉट फॉरगेट, एक तो ऑलरेडी 5th डोनर स्टेट है अफगानिस्तान का, 5वें नंबर पे, 2 बिलियन तक शायद पहले भी सर्व कर चुके हैं मुख्तलिफ सिविलियन प्रोजेक्ट्स में। पार्लियामेंट बिल्डिंग बना के दे दी, डैम बना के दे दिए, And another 1 billion coming now. 1 बिलियन अभी आ रहा है। अभी डोनर कॉन्फ्रेंस होगी शायद ब्रसल में अगले महीने, तो दूसरे लोग मुल्क भी देंगे। तो ये इनका अगर हम बायलैटरल मामला समझे और कोशिश करें इसी के साथ कि अफगानिस्तान को हम दुश्मन न बना लें। हिंदुस्तान के साथ तो आपका ईस्टर्न बॉर्डर हमेशा से गर्म है, ज्यादा फोर्सेस भी आपके वहां है। अब हमने गलती कर ली 9/11 के बाद, वेस्टर्न बॉर्डर को भी आर्मी ले गए, लेकिन उसको नहीं छेड़ते हैं, वो पुरानी बात हो गई। अब तो हो गया, ठीक है, जब आए, लेकिन हम वेस्टर्न बॉर्डर भी हमारा ईस्टर्न बॉर्डर की तरह गर्म ना हो जाए। हिंदुस्तान की कोशिश जरूर होगी कि वो गर्म करवाए, लेकिन हम उसमें उसका इनडायरेक्टली इस तरह साथ न दे कि हम हर एक बात के पीछे डंडा उठा के वहां जाए कि नहीं ये गलत हो रहा है। भाई, लोगों से दोस्ती बना लो, फाटा के लोगों को थोड़ा सा मना लो, फिर अफगानिस्तान के अक्रॉस द बॉर्डर सारे लोग आपके दुश्मन नहीं है, आपके दुश्मन वहां जरूर हैं, यहाँ पे भी उनके दुश्मन है, लेकिन उनको हम मौका क्यों दे कि हमारी दोस्ती को दुश्मनी में कन्वर्ट करवा दे। बिल्कुल ठीक है सर। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने 6 जुलाई को जो वजीरिस्तान में जब उन्होंने ईद उल फितर के मौके पर अगले मोर्चों का दौरा किया, तो उस पर उन्होंने एक बात कही कि हर किस्म की दहशतगर्दी के खिलाफ हमारे ऑपरेशन जारी रहेगा और हम इंश्योर करेंगे इस चीज़ को कि पाकिस्तान की सरजमीन किसी भी पड़ोसी मुल्क के लिए और स्पेशली अफगानिस्तान के लिए इस्तेमाल, उनके खिलाफ इस्तेमाल ना हो। यही चीज़ हम एक्सपेक्ट करते हैं अफगानिस्तान से भी कि अफगानिस्तान जो है वो उसकी सरजमीन दूसरे ममालिक या मुल्क जो है वो इस्तेमाल ना करें हमारे खिलाफ। सर, हमारे पास तो शायद एविडेंस भी बड़े मौजूद थे कि वो सरजमीन इस्तेमाल हो रही है, बलूचिस्तान से हम रॉ एजेंट पकड़ लेते हैं, तो हम फिर किस तरह से और आगे चल के, क्योंकि मैं बात करूंगी यूएन जनरल असेंबली की सेशन में कि हम वो केस और हमारे पास चूंकि ट्रम्प कार्ड मौजूद है कुलभूषण यादव, हम किस तरह से आगे करेंगे? और अफगानिस्तान अगर अशरफ गनी साहब इस तरह की क्लियर स्टेटमेंट्स में टारगेट कर रहे हैं पाकिस्तान को बगैर नाम लिए, तो क्या मैसेज आता है? देखिए, टेरर के बारे में जो हमारी पॉलिसीज़ हैं ना, उनके सामने बहुत से सवालिया निशान लगे हुए हैं। और आज हम कहते तो बारहा हैं कि हम इंडिस्क्रिमिनेटली टेरर के साथ डील कर रहे हैं, लेकिन हक़ाइक़ ज़रा इससे थोड़े से मुख्तलिफ हैं। चीफ ऑफ द आर्मी साहब उनका ये कहना अपनी जगह बहुत अहमियत रखता है। इससे अगर पहले जाएं तो हमारे प्राइम मिनिस्टर और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जब इकट्ठे गए थे काबुल में, तो उन्होंने वहाँ बायलैटरल टॉक्स के दौरान एक स्टेटमेंट दी थी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कि अफ़गानिस्तान के दुश्मन पाकिस्तान के दुश्मन गर्दाने जाएंगे। लेकिन तब से अगर पाकिस्तान की आप जो इन्होंने एक्शंस रहे हैं वो अनफॉर्चुनेटली उस चीज़ की गमाजी नहीं करते, बल्कि शायद उससे कॉन्फ्लिक्ट में जाते हैं। सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम है अफ़गानिस्तान को वो है, तो ये वो सबसे बड़ा क्राइसिस है जो कि इस वक्त ना सिर्फ अफ़गानिस्तान को नज़र आ रहा है या हिंदुस्तान को नज़र आ रहा है, बल्कि बाकी दुनिया भी इसको इसी नज़र से ही देख रही है। और इसी वजह से पाकिस्तान की सुनवाई जो है वो वेरियस फोरा के ऊपर इंटरनेशनली नहीं हो पा रही है। और पाकिस्तान अपने जेन्युइन कंसर्न्स भी जब लेके जाता है, तो इस एक नेगेटिविटी के एनवायरनमेंट में जब आप उसको प्रेजेंट करते हैं दुनिया को, तो दुनिया का रिस्पांस जो है वो इतना पॉजिटिव नहीं होता। तो मैं बहुत देर से इंसिस्ट कर रहा हूँ कि वक्त आ गया है कि हम अपनी जो टेरर की पॉलिसी है उसको रिव्यू करें और देखें कि क्या ये जो हाइड्रास हमने क्रिएट किए हुए हैं अपने सॉइल के ऊपर
एमक्यूएम भी एक हाइड्रा हमने क्रिएट किया था, आज देखिए कि वो क्या कर चुका हुआ है। फ्रैंकली हमने, हमारी स्टेट ने क्रिएट किया हुआ था। सर ये जो कश्मीर में जो मजालिम ढाए जा रहे हैं, क्या इसका मकसद ये भी हो सकता है कि जी बलूचिस्तान पर से आपकी पाकिस्तानी हुकूमत की जो है वो तवज्जो हटाने की कोशिश है भारत की, और आप उस तरह से रेस्क्यू, क्योंकि बलूचिस्तान पे स्ट्रैटेजी उनकी बहुत एक फुल फ्लेजेड स्ट्रैटेजी के साथ वो आ रहे हैं। यूएन जनरल असेंबली में भी एक्सपेक्टेड है कि जी वो दो टोक कोई बात करें, और सुषमा स्वराज साहिबा जो हैं, और पाकिस्तान के ऊपर हमेशा से डबल स्टैंडर्ड्स, हिपोक्रेसी के जो इल्जामात वो लगाते आए हैं, तो वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान जो है उसको कॉर्नर करने की कंप्लीटली हमने एक कोशिश कर ली है। देखिए जी, अगर आप उसको दुश्मन मुल्क कहते हैं तो एनी एनिमी वर्थ हिज नेम, वो ही गोइंग टू टेक फुल एडवांटेज ऑफ योर वीकनेसेस। अगर आप उसको ब्रॉड साइड देंगे, आप उसको वीकनेस शो करेंगे, तो फिर तो वो दुश्मन नहीं, आपका दोस्त है, अगर वो आपके उस कमजोरी से इस्तेफादा नहीं कर रहा है। तो हम खुद कमजोरियां देख रहे हैं। और एक तो ये बात है कि और मोदी साहब बिल्कुल, इंडिया की स्ट्रेटेजी होगी कि वो तवज्जो कश्मीर से हटा के आपको बलूचिस्तान में इन्वॉल्व कर दे, और आप खुद जो है वो वहाँ का मसला जो है वो मजीद गंभीर कर रहे हैं अपने हाथों से। कश्मीर पे मुझे वो नहीं है कि ये हुकूमत, क्योंकि पाकिस्तान की अवाम इसमें दिलचस्पी नहीं रखती। आपने क्या देखा पाकिस्तान में, वहाँ पर लोग मर रहे हैं, वहाँ पर एजिटेशन, नोबडी इज पुश्ड। कोई क्या कर रहा है, कोई जुलूस कर रहा है, कोई जलसे कर रहा है, कोई एक दूसरे को गालियां दे रहा है, कोई वो कर रहा है, आपस में हम लड़ रहे हैं, आपस तो में वजीर आजम कहते हैं कश्मीरियों की हिमायत करते रहेंगे। रहनुमाओं से भी मुलाकात उन्होंने कल की। आप मुझे बताएं, लंदन में इस वक्त एक मुजाहरा 10 डाउनिंग स्ट्रीट के ऊपर लाखों लोगों की हुआ है, लाखों कश्मीरी यूके में रहते हैं, लाखों पाकिस्तानी यूके में रहते हैं। व्हाई कांट वी ओवररन द 10 डाउनिंग स्ट्रीट विद अ मिलियन मार्च? ये एजुटेशन होती है ना कि आप उसको वो करें। और अच्छी बात ये हुई है, एक कम से कम एक पॉजिटिव मुझे ये है कि इस मूवमेंट को हाईजैक नहीं किया गया, उसमें टेररिज्म इंट्रोड्यूस नहीं की गई है, इसलिए दुनिया उसको कुछ ना कुछ इसके ऊपर बातचीत कर रही है। आपने एक धमाका अगर कर दिया, किसी जादी को अंदर डाल दिया, पाकिस्तान विल कम अंडर प्रेशर। तो अभी पाकिस्तान के अवाम के ऊपर है, अगर वो इसमें दिलचस्पी रखती है, अगर वो इंडियन फिल्में देखते हैं, वो ज्यादा दे आर मोर इंटरेस्टेड इन सीइंग इंडियन मूवीज देन सीइंग एनी जो। सर कुलभूषण का जो वो ट्रम्प कार्ड पाकिस्तान के पास है, पाकिस्तान क्या, मैं जरूर मैं इस बात को, रुस्तम शाह मोहम्मद साहब इस वक्त हमें टेलीफोन कॉल पे ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम रुस्तम शाह साहब, हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन कॉल पे नहीं है। जो ये हमारा राब्ता बहाल हो सकेगा, आई एम श्योर कुछ टेक्निकल वजूहात है। बात कर जी जी जी। देखिए, इस वक्त एक सर्वे किया गया है जिसके कश्मीर के बारे में चूंकि हम बात कर रहे हैं, उसमें इंडियन साइड ऑफ कश्मीर, वहाँ भी लोगों से बात की गई है, और पाकिस्तानी साइड ऑफ कश्मीर है, वहाँ भी बात की गई। एक तो रियलिटीज़ को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। वानी की जो मूवमेंट है वो पाकिस्तान के साथ इलाक़ की मूवमेंट नहीं है। वानी की मूवमेंट जो है वो आज़ाद कश्मीर की मूवमेंट है, मतलब एक इंडिपेंडेंस ऑफ कश्मीर की मूवमेंट है। और जो चीज़ सबसे ज़्यादा सामने आई है वो है कि पाकिस्तानी कश्मीर में भी लोगों ने कश्मीर की आज़ादी की बात की है। 19% लोगों ने जिनसे बात की गई उन्होंने कश्मीर, और ये जो पिछले 10, 15, 20, 25 साल में कश्मीर की आज़ादी की जो बात है वो बढ़ती जा रही है। और अब जो ये इंडिजिनस मूवमेंट वहाँ से निकली है वानी की शक्ल में, ये भी कश्मीर की आज़ादी की मूवमेंट है। ये इंडिया या पाकिस्तान के साथ इलाक़ की मूवमेंट नहीं है। हमें चाहिए कि हम इसको भी कंसिडर करें और इसको भी देखें कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। एब्सोल्युटली। अयाज वज़ीर साहब,